Hello and welcome to the session, students. In the previous video, we have already covered virtual memory management system, which was the last memory management system का scheme था जो last, and then हमने basics of GUI देखा था. Basics of GUI में अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो उसके previous videos आपने देखे हुए होने चाहिए. Basics of GUI में हमने CUI and GUI के बारे में समझा था कि पहले कैसे cryptic commands learn करनी पड़ती थी for operations, for performing the operations, and then GUI came into picture and everything is now graphical and the commands are there but they are at the back end. Background में वो commands execute होती है जैसे ही हम graphical representation के साथ interact करते हैं so that हम हमारा काम operating system से करवा सके. Okay, so basics of GUI देखा था, then components of Windows देखे थे हमने. Now, last few topics are remaining which we will be covering in this video, and they are, now first is access and security aspects of operating system. Security, access करने देना files को, access करना means allowing, like it is giving permission to access the file, access the information in that or modify it. मतलब security से related concepts क्या हैं operating system के. So security is concerned with the ability of the operating system to enforce over the storage and transportation of data in and between the objects. हमारा data system में stored है तो operating system का क्या role है कि right person को right information मिलना चाहिए. If I am logging into the system तो मेरे से related जो data है वो उतना ही मेरे सामने visible होना चाहिए, उतना ही access मुझे मिलना चाहिए. Whenever that data is stored or it is transported, मतलब अगर एक से ज़्यादा objects में मैं deal कर रही हूँ and multi user environment में मैं काम कर रही हूँ तो ऐसे नहीं कोई भी user मेरे system में इस तरह से full access उसको दिया जाए. So that is also a role of operating system. In multi-user systems, the concept of security and protections are very important, isn't it? अगर एक ही user है, एक ही PC पे एक ही user हमेशा काम करने वाला है, no network, nothing is there, तो किसी क्या एक्सेस आने का चांसेस बहुत कम रहता है, राइट. अगर मल्टी यूजर सिस्टम में आ गई, मैं मल्टीपल यूजर्स उस सिस्टम को यूज करने वाले हैं या मैं ऐसे एनवायरनमेंट में हूँ जहाँ मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस है मेरे सिस्टम का, देन सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है. यूजर प्रोग्राम शुड नॉट इंटरफेयर विद वन अनदर और विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. इन जनरल सिक्योर सिस्टम किसको बोलेंगे? सिक्योर सिस्टम्स आर दोज विच कंट्रोल थ्रू द यूज ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी फीचर्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन that only properly authorized individual or processes operating on their behalf will have access to read, write, create or delete. In general, operating system को ये सारी चीज का ध्यान देना है कि authorized individual, अगर वो फाइल को मेरे को फाइल को रीड राइट करने का राइट है तो देन ओनली इट विल अलाउ मी टू राइट इनटू दैट फाइल और रीड दैट फाइल. अदरवाइज द फाइल विल नॉट द फाइल विल ओपन एंड रीड ओनली, आई कैन नॉट राइट, राइट. मतलब एक्सेस क्या देना है दैट आर डिजाइन बाय द एडमिनिस्ट्रेटर्स, बट ऑपरेटिंग सिस्टम को भी उन चीजों का ध्यान देना. There are three main elements of security: confidentiality, integrity and availability. Now confidentiality क्या है? Confidentiality means जो भी information मेरे system में है वो unauthorized manner से कोई भी उसको access नहीं कर रहा है. That means that is called as the confidentiality. Okay, so information is not accessed in an unauthorized manner. It is generally related to the read operations. Read operations से related है, मतलब कोई read भी नहीं ही कर पाए क्योंकि मेरी जो information है unauthorized manner में, जो बंदे ऑथोराइज नहीं है, जो पर्सन या जो प्रोग्राम्स को मैं मेरी फाइल को रीड करने की परमिशन ना देना चाहूँ तो वो नहीं रीड कर पाना चाहिए. दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी. देन कम्स द इंटीग्रिटी. नाउ इंटीग्रिटी इज रिलेटेड विद द मेकिंग चेंजेस इन द कंटेंट. इंफॉर्मेशन इज नॉट अमेंडेड और डिलीटेड बाय एन अनऑथोराइज्ड मैनर. मीन्स अ फाइल ऑफ वॉट एवर इट इज, माई डेटा, माई फाइल, माई इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी अमेंडेड. उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए, उसको डिलीट नहीं होने चाहिए उसके कंटेंट unauthorized way में. So it is generally related to write operation, means nothing is added or nothing is removed from my file. Then next is the availability. What does that mean? Availability means information is available to authorized users at right time. So ये तीन aspects है जिससे बोल सकते हैं कि security के main elements हैं ये, कि confidentiality है मतलब कोई भी बिना permission के access नहीं कर पा रहा है, कोई भी उसमें ना रीड कर पा रहा है, ना राइट कर पा रहा है, ना उसमें कोई चेंजेस कर पा रहा है. एंड अवेलेबिलिटी, अगर मेरी फाइल है जो जिसपे मुझे राइट है काम करने का, आई एम द ऑथोराइज्ड यूजर, अगर वो मेरे लिए अवेलेबल नहीं है तो इट डजंट मेक सेंस, राइट. सो अवेलेबिलिटी मीन्स इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू ऑथोराइज्ड यूजर एट द राइट टाइम.
नेक्स्ट है सिक्योरिटी थ्रेट्स. नाउ सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है? जब नेटवर्क में आते हैं सिस्टम्स, तो वहां पे ही डर आता है डेटा को अनऑथराइज एक्सेस आने का. सो ड्यू टू नेटवर्क द यूजर हैज टू एक्सेस डेटा एंड प्रोग्राम्स एट डिफरेंट लोकेशंस. दिस हैज इंक्रीज द थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटिंग. अब यहाँ पर बैठ के भी मैं फाइल्स एक्सेस कर सकती हूँ, मैं किसी दूसरी लोकेशन पे जाकर भी फाइल्स को एक्सेस कर सकती हूँ. सो दैट मीन्स माई डेटा इज ट्रैवलिंग इन द नेटवर्क. तो जैसे नेटवर्क में डेटा ट्रैवल कर रहा है, सो रिस्क बढ़ता है, isn't it? So sharing increases security threats. Threats कौन से हैं? अब threats यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं: टैपिंग, डिस्क्लोजर, अमेंडमेंट, फैब्रिकेशन एंड डिनाइल. थ्रेट्स कौन से हैं? हमारे डेटा को जब वो नेटवर्क में ट्रैवल कर रहा है. अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ सर्विस मींस बिना ऑथोराइज के उस सर्विस को, उस डेटा को यूज करना या रीड कर लेना. दैट इज कॉल्ड एज टैपिंग. आपने सुना होगा फोन लाइन टैप्स होती है, तो टैपिंग मींस टैपिंग द फोन लाइन की तरह. जैसे होता है ना कि इन बिटवीन दो लोग बात कर रहे हैं, तीसरा पर्सन इज जस्ट हियरिंग दैट. ओके, सो दैट इज कॉल्ड टैपिंग. मींस पर्सन ए इज सेंडिंग सम डेटा टू पर्सन बी, सो पर्सन सी से who is unauthorized will go through the data, will see the data. Okay, then unauthorized disclosure of information, again it is called disclosure. देन यहाँ पर देखो टैपिंग, डिस्क्लोजर एक ही डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है. A is sending data to B which is unauthorizedly read by this third person. Then next is unauthorized alteration and deletion of information, that is called amendment. Means here A was sending to B, C was just viewing, just watching, just देख रहा था उस इंफॉर्मेशन में जाके कि ये मैं देखूं सिर्फ. यहाँ पर क्या हो रहा है अमेंडमेंट में? A डेटा B को भेज रहा है, तो C जो थर्ड पर्सन है वो उसको चेंज करके भेज रहा है. मीन्स समथिंग इज गेटिंग चेंज्ड इन द कंटेंट. So that is called amendment. Next is unauthorized fabrication of information. यहाँ पर देखो fabrication समझ में आएगा. A isn't sending any data to B, but C is sending data as to B as if A is sending. Okay, so that is called unauthorizedly, मतलब उस डेटा को प्रोड्यूस किया जाता है, fabrication that is called. Then denial of service. A want to send data to B, but C has done something कि A और B का communication ही नहीं हो पाया. A को लगेगा मैंने भेज दिया, but B has not yet received. So that is called denial of service. To whom? To authorized user. B was authorized, but B will not receive any data. Okay. So tapping, यहाँ पर एक और लाइन है, tapping and disclosure are passive threats and remaining are active threats. Passive और active किस तरह से यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे? टैपिंग, डिस्क्लोजर में यहाँ क्या हो रहा है? डेटा को सिर्फ रीड किया जा रहा है. यहाँ डेटा में अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, या तो डेटा ही बिल्कुल ही अलग है या डेटा मिल रहा ही नहीं. सो दे आर कॉल्ड एक्टिव थ्रेट्स एंड टैपिंग एंड डिस्क्लोजर आर द passive threats where data is not changed but it is disclosed in an unauthorized manner. Then now next is attacks on security. पे अटैक्स कौन से टाइप्स के अटैक्स हैं जो हो सकते हैं सिक्योरिटी पे, किस तरह से हो सकते हैं? सो द सिक्योरिटी सिस्टम्स कैन बी अटैक्ड एंड पेनिट्रेटेड इन अ नंबर ऑफ वेज एज फॉलो. सबसे पहला है ऑथोराइजेशन से. ऑथोराइजेशन से मतलब आई एम द ऑथोराइज पर्सन, आई हैव द माई लॉग इन आई डी, आई हैव माई पासवर्ड, सो आई एम ऑथोराइज पर्सन, आई एम एंटरिंग इन टू द सिस्टम ऑथोराइज. लेकिन वही लॉग इन आई डी पासवर्ड किसी और को मिल जाए और वो मेरे सिस्टम में लॉग इन करे, तो इज इट ऑथोराइज? नो. मतलब ऑथोराइजेशन से आ रहा है, बट तरीका जो है, जो पर्सन है वो ऑथराइज्ड नहीं है. सो ऑथेंटिकेशन मींस वेरिफिकेशन ऑफ एक्सेस टू द सिस्टम रिसोर्सेज. उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन. मींस आई एम ऑथेंटिकेटेड, लाइक मेरे को परमिशन है उस सिस्टम को या सिस्टम रिसोर्सेज को एक्सेस करने का. इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेशन. सो फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेज इन विच ऑथेंटिकेशन में टेक प्लेस. इन सब तरीकों से ऑथेंटिकेट होके सिस्टम में एंटर किया जा सकता है. कैसे? बाय स्टीलिंग and using somebody else's password and then use it, isn't it? किसी दूसरे का पासवर्ड चुरा के उसके सिस्टम में लॉग इन करना, या सिस्टम में या अकाउंट में, wherever. यूज ऑफ वेंडर सप्लाइड पासवर्ड विच कैन बी यूज्ड बाय सिस्टम एडमिन्स. सो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स जो वेंडर सप्लाइड पासवर्ड्स होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं. ओके, सो ऐसे पासवर्ड्स को लेकर चुरा कर उसमें उनके इंफॉर्मेशन में, उनके सिस्टम में एक्सेस करने की कोशिश करना. फाइंडिंग पासवर्ड्स बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्रायल एंड एरर मेथड से पासवर्ड्स को ढूंढ के और उस सिस्टम में एंटर होना. सो दैट इज ऑल्सो, मतलब ऑथेंटिकेट कर रहे हो आप अपने वे में, बट कर क्या रहे हो? व्हाट यू आर डूइंग? यू आर अटैकिंग द सिक्योरिटी.
If a user logs on and then goes off, an intruder can use the terminal. So अगर login करके just चली जाओ वहां से, so anyone can use my terminal क्योंकि सारी चीजें access उसको पूरा रहेगा. So that way authorized way में security पे harm हो रहा है. Writing dummy login programs to fool the user. Now dummy login programs कौन से होते हैं? ऐसे programs जो जो मतलब एक्चुअल की तरह लगेंगे बट वो एक्चुअल प्रोग्राम्स नहीं होते हैं. दे आर जस्ट मेड फॉर टेकिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम द यूजर सो दैट दैट यूजर नेम एंड पासवर्ड कैन बी यूज्ड ऑन द एक्चुअल वेबसाइट्स और एक्चुअल सिस्टम्स में लॉग इन करते वक्त, ताकि ऑथोराइज वे में हम उनकी सिक्योरिटी को हैक करें. नेक्स्ट इज ब्राउजिंग. नाउ ब्राउजिंग से भी मेरे सिक्योरिटी पे अटैक हो सकता है. कैसे? इन सब सिस्टम देयर एग्जिस्ट फाइल्स. सिस्टम में हमारी फाइल्स होती हैं विद एक्सेस कंट्रोल्स विच आर वेरी परमिसिव. एक्सेस कंट्रोल्स रहते हैं तो परमिसिव रहते हैं, मींस दे आर लाइक परमिशन है हमें उन फाइल्स को एक्सेस वगैरह करने का. सो वन कैन ब्राउज थ्रू द सिस्टम फाइल टू गेट दिस इंफॉर्मेशन, आफ्टर विच अनप्रोटेक्टेड फाइल्स और डेटाबेसेस कुड बी इजीली एक्सेस्ड. वही बोल रहा है दैट इफ यू आर अलाउइंग समवन to browse through your file system, so आपके unprotected files या databases information easily access. simple है, अगर हमारा फोन किसी के हाथ में चला गया तो हमारा हर ऐप पे थोड़ी ना लॉक लगा हुआ है, तो दिया कॉल करने के लिए और करके कुछ और जो फाइल्स को हमने प्रोटेक्ट करके नहीं रखा हुआ है उस पे भी इजीली उनका एक्सेस जा सकता है. कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कुड बी रेड और इवन मॉडिफाइड. ओके, नेक्स्ट इज ट्रैपडोर्स. नाउ ट्रैपडोर्स के जरिए भी सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाया जाता है. वो कैसे? ट्रैपडोर्स क्या होते हैं? व्हेनेवर द सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स मेक द सॉफ्टवेयर्स, वो उनकी ना कुछ सीक्रेट एंट्री पॉइंट्स रहती है ताकि सॉफ्टवेयर में अगर चेंजेस करने पड़े तो दिस वे दे कैन एंटर इनटू द सॉफ्टवेयर एंड दे कैन मेक चेंजेस इनटू द कोड. सो उन कोड्स को भी जो लोगों को एंटर होना होता है, जो लोगों को हैकिंग करनी है, इंफॉर्मेशन चुरानी है या व्हाटएवर इट इज, दे फाइंड आउट दोज ट्रैप डोर्स एंड उन डोर्स से घुस के वो लोग सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाते हैं. दे ट्राई टू एक्सेस आवर इंफॉर्मेशन. समटाइम्स सॉफ्टवेयर डिजाइनर वांट टू मॉडिफाई देयर प्रोग्राम आफ्टर इंस्टॉलेशन. फॉर दैट देयर आर सम सीक्रेट एंट्री पॉइंट्स व्हिच प्रोग्रामर्स कीप and it does not require any permission. These are called as trapdoors. Intruders can use these trapdoors. Okay, next is invalid parameters. Invalid parameters मतलब अगर यहाँ पर किसी का लॉगिन आईडी और पासवर्ड, लॉगिन स्क्रीन खुला हुआ है, लॉगिन आईडी मेरे पास है, पासवर्ड्स को मैंने गलत पैरामीटर्स डाल के पासवर्ड कर दिया, क्या हुआ? वो अकाउंट या तो ब्लॉक कर दिया जाता है. दैट डिपेंड्स फ्रॉम लाइक वेबसाइट टू वेबसाइट, वो वैरी करता है, या कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए, या कुछ दिन के लिए, या जब तक उसको प्रॉपरली अकाउंट को एक्सेस नहीं किया जाए बाय वेरीफाइंग द मोबाइल नंबर एंड ऑल. सो इससे क्या होगा? अगर मैं इनवैलिड पैरामीटर्स डाल रही हूँ तो सिक्योरिटी वायलेशन होगा. कैसे? मतलब जो ऑथराइज पर्सन है वो भी अपने फाइल्स को या अपने सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाएगा. सो पासिंग इनवैलिड पैरामीटर्स मे कॉज सीरियस सिक्योरिटी वायलेशन. नेक्स्ट इज लाइन टैपिंग. लाइन टैपिंग क्या है? अगेन दैट इज टैपिंग मीन्स tapping in communication line means accessing or modifying the confidential data. Special terminal is used to tap into a communication line. अगर एक communication line है A to B suppose, उस communication line को tap करने के लिए एक special terminal रहता है. वो special terminal से उस communication line को tap किया जा सकता है. That means whatever is being transferred there, whatever is traveling there, whatever data is moving from to and fro, वो सबको access किया जा सकता है. Next is electronic data capture. This is use of active or passive wiretaps or mechanism. Different mechanisms use होते हैं, wiretaps use होते हैं to pick up the screen radiation and recognize what is displayed on the screen is called as electronic data capture. Electronic data capture किसको बोलते हैं? कि different mechanism या different devices को use करके screen पर, सामने screen पर क्या use display हो रहा है उस display को recognize करना, ताकि हमें समझ में आए. Suppose मैंने अगर screen पे मुझे समझ में आ गया इसका login ID and password क्या डाल रहा है या क्या इसके credit card information है screen पर जो display हो रही है. अभी आपने तो देखा होगा कि अब नाउ वी हैव डिफरेंट कंट्रोल्स की दिखाई ही ना दे स्क्रीन पर क्या हम टाइप कर रहे हैं एक्चुअली, इजंट इट? सो बट देन टू देयर आर मेनी मेथड्स, मैकेनिज्म्स जिससे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कि स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले हो सकता है. लॉस्ट लाइन. नाउ लॉस्ट लाइन मींस नेटवर्क. In network, line may get lost. In such cases, some operating system log out. जैसे line lost हो गई means अगर मैंने बिना log out कर ही बंद कर दिया
तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद मुझे लाइक देर अभी जो अपग्रेड्स आ रहे हैं हमारे ऑपरेटिंग, तो वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है एंड अलाउ एक्सेस ओनली आफ्टर द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द यूजर। बट कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब नहीं कर सकते, सो प्रोसेस विल बी फ्लोटिंग एंड इट कैन अलाउ इंट्रूडर टू एक्सेस द डेटा। सो समवन थर्ड वन, द पर्सन हु इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन माई डेटा कैन यूज दैट फ्लोटिंग लाइन एंड कैन एक्सेस द डेटा। सी दो लाइंस में इसको समझना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, बट वॉट एवर द हेडिंग इज देयर, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल्स। अगर मैंने मेरी फाइल, मुझे मालूम है यहाँ पर मेरे सिस्टम में बहुत सारे लोगों का बैठना है, मेनी पीपल आर गोइंग टू एक्सेस माय सिस्टम। अगर मैं मेरी फाइल्स को प्रॉपरली राइट्स, एक्सेस राइट्स दे दूं एंड मुझे मालूम है मेरे को मेरी फाइल्स किसी को ओपन करने देनी है नहीं देनी, अगर मैं उनके राइट्स को मैनेज करूं तो दैट विल बी बेटर, इजंट इट? मींस मैं पूरी अपनी तरफ से तैयारी रखूं कि मेरे फाइल्स को, मेरे डेटा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। So some administrators may not plan about all the rights. So some users may have more access and some users may have very less access. यहाँ पे क्या होगा, अगर राइट्स प्रॉपरली प्लान नहीं है तो जिसको जो फाइल दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है और जिसको नहीं दिखनी चाहिए उसको भी दिख रही है, राइट? नेक्स्ट इज वेस्ट रिकवरी। अब मेरा डेटा चोरी करना है तो वेस्ट से भी डेटा चोरी किया जा सकता है। कैसे? सपोज जब भी हम ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन डिलीट करते हैं हमारे सिस्टम से, कोई भी फाइल, सपोज मेरे को नहीं चाहिए थी वो फाइल, डिलीट कर दी मैंने, लेकिन वो फाइल किसी और के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो फाइल उसको लेने का क्या तरीका है? वेस्ट रिकवरी। वेस्ट रिकवरी मीन्स जो ब्लॉक जहां से आप डेटा डिलीट करते हो, जब तक वहां नया डेटा जाकर नहीं फिल होता, नया डेटा को वो ब्लॉक्स अलोकेट नहीं होते, हम पहले सीख चुके हैं ये, तब तक दैट ब्लॉक इज फ्री। दैट ब्लॉक, उसमें डेटा वो वही रहता है। सो इंट्रूडर में यूज सम मैकेनिज्म टू स्कैन दीज ब्लॉक्स। ऐसे मैकेनिज्म्स, कुछ मैकेनिज्म्स को यूज करके वो ब्लॉक्स को स्कैन करके वो वेस्ट में से, मतलब मेरी डिलीटेड फाइल को भी रिकवर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स सर्टेन प्रोग्राम्स लाइक वर्म्स, वायरस अटैक्स ऑन द सिस्टम, इस तरह से भी मेरी सिक्योरिटी को मेरे सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। दैट इज बाय क्रिएटिंग द प्रोग्राम्स लाइक वर्म्स, वायरसेस एंड many programs are there, right? Now next is computer worm. Computer worm में क्या है यहाँ पर देखेंगे, a computer worm is a full program by itself. अब दो ही है यहाँ पर हमें पढ़ने हैं, computer worm and virus. Computer worm is a full program by itself. Full program है means it is a complete program. It will enter into your system and it will start spoiling your system. Okay, it will start doing its work. What it does, I'll read this for you. It is written in such a way that it spreads to other, it is written in such a way that it spreads to other computers over a network, and it also consume all the resources of the network. That means ये जो computer worm है वो क्या करेगा, मेरे system में enter होने के बाद दूसरे कंप्यूटर्स में जो नेटवर्क में है उनमें इट विल गो ऑन स्प्रेडिंग एंड स्प्रेडिंग एंड इट विल कंज्यूम द रिसोर्सेज ऑफ द नेटवर्क। भले ही पूरे नेटवर्क में रिसोर्सेज हैं, फ्री हैं, बट देन टू वो वर्म उसको कंज्यूम कर देगा। मींस इस तरह से दिखाएगा दैट यू आर नॉट, द रिसोर्सेज नॉट फ्री, यू कैन नॉट एक्सेस दैट एंड ऑल। रिसोर्सेज कैन बी योर डेटा, डेटाबेस और द हार्डवेयर अटैच्ड इन योर नेटवर्क। अ कंप्यूटर वर्म कैन पोटेंशियली ब्रिंग द एंटायर नेटवर्क टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। क्या बोल रहा है, एक वर्म क्या कर सकता है, पूरे नेटवर्क को हॉल्ट पे ला सकता है, रुका सकता है। By what? By consuming the resources of the network. It was invented by research scientists at Xerox PARC Research Center. Internet worm was introduced on November 2, 1998 into internet by Robert Morris. ना इसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या है, क्या कैसे काम करता है। यूजुअली अ कंप्यूटर वर्म डज नॉट हार्म अदर प्रोग्राम्स और डेटा। मतलब कंप्यूटर वर्म में हमें ये समझना है कि वो हमारे डेटा या प्रोग्राम्स को नुकसान नहीं करेगा, वो हमारे नेटवर्क के रिसोर्सेज को नुकसान करेगा, नेटवर्क में नुकसान करेगा एंड अदर कंप्यूटर्स में इट विल गो ऑन स्प्रेडिंग। इट जस्ट स्प्रेड्स thereby consuming large resources such as transmission capacity or disk storage. It denies services to the legitimate users. मतलब जो authorized user है, जो actual users है, उनको काम करने से ही रोक देगा, क्योंकि पूरा नेटवर्क को वो हॉल्ट पे ला सकता। अब इसका सेफ गार्ड क्या है? ऑफ कोर्स वर्म कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एंड वेरियस चेक पॉइंट्स ऑन द कम्युनिकेशन सिस्टम। जहाँ पे भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जहाँ पे भी एक सिस्टम दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, वहाँ पे डिफरेंट चेक पॉइंट्स पर डिफरेंट चेक्स को करते हुए, सिक्योरिटी रखते हुए, जैसे एंटीवायरस प्रोग्राम्स एंड ऑल। सो उससे इट कैन बी our system can be safeguarded from the
नेक्स्ट इज द कंप्यूटर वायरस. अ कंप्यूटर वायरस इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम. अब यहाँ समझना है हमें, कंप्यूटर वॉर्म में क्या पढ़ा हमने, ये फुल प्रोग्राम है. कंप्यूटर वायरस क्या है, ये एक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है. मीन्स इट इज नॉट अ कंप्लीट प्रोग्राम इन इटसेल्फ. मीन्स इट कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली. इट विल attach itself to some other program. दूसरे प्रोग्राम के साथ अटैच होगा एंड दूसरे प्रोग्राम के साथ अटैच होकर वो अपना काम करेगा. इट इज रिटन विथ अ क्लियर इंटेंशन ऑफ इन्फेक्टिंग अदर प्रोग्राम्स. अ कंप्यूटर वायरस इज नॉट अ कंप्लीट प्रोग्राम बाय इटसेल्फ. खुद पूरा प्रोग्राम नहीं है. इट कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली. अ कंप्यूटर वायरस कॉज डायरेक्ट हार्म टू द सिस्टम. डायरेक्ट हार्म करेगा. सॉरी, यहाँ पर अ कंप्यूटर वायरस कॉज डायरेक्ट हार्म टू द सिस्टम. डायरेक्ट हार्म मीन्स सिस्टम में जो डेटा फाइल्स ये सब आपका पड़ा हुआ है उसको डायरेक्ट हार्म करेगा. वहां पर वॉर्म क्या कर रहा था, इट वॉज अफेक्टिंग द नेटवर्क. It can corrupt the code as well as data. The classification of virus is based on what do it affects or where the virus resides. क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है ये किस पे बेस्ड है कि वायरस कहाँ रह रहा है या वायरस किस चीज को अफेक्ट करता है. वो कौन से हैं, बूट सेक्टर वायरस जो बूटिंग के टाइम पे अफेक्ट करेगा, मेमोरी रेसिडेंट वायरिंग रिसाइडिंग इन द मेमोरी, फाइल वायरस विथ फाइल, कमांड प्रोसेसर वायरस, जनरल पर्पस वायरस. ओके. नेक्स्ट इज इन्फेक्शन मेथड. अब इन्फेक्शन मेथड्स कौन से हैं. फर्स्ट इन्फेक्शन मेथड क्या है, अपेंड. अपेंड मींस इन दिस मेथड द वायरल कोड. जैसे कि हमने देखा वायरस खुद कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, मींस इट नीड्स अ सपोर्टिंग प्रोग्राम जिसके साथ वो अटैच होगा इन डिफरेंट वेज एंड देन इट कैन affect the program or it can corrupt the code or data. In this append method, in this method viral code appends itself to the unaffected program. अब खुद unaffected program के साथ append हो जाता है, attach हो जाता है and it start affecting the unaffected program. रिप्लेस से क्या होगा, इन दिस मेथड में वायरल कोड क्या करेगा, ओरिजिनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को कोड को रिप्लेस करेगा विद इटसेल्फ. मींस खुद का कोड खुद के कोड से एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम के कोड को रिप्लेस करेगा completely or partially so that that program doesn't works in the way it was designed to be. Then insert में क्या होगा, in this method viral code is inserted in the body of the executable program to carry out some funny action. It will be inserted in between. Okay, append means at the last. Delete means वायरल कोड क्या करेगा, खुद इंसर्ट नहीं होगा, इट विल डिलीट सम कोड फ्रॉम द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम. देन नेक्स्ट इज रीडायरेक्ट. रीडायरेक्ट में क्या, इन दिस केस द नॉर्मल कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज चेंज टू एग्जीक्यूट सम अदर कोड. इसमें क्या करेगा वायरस, रीडायरेक्शन देगा. दैट मीन्स द कोड विच was about to execute in flow, but वो execution normal ना होते हुए it will go to some other places and then some other code will be executed. नेक्स्ट इज नाउ वायरस डिटेक्शन, रिमूवल एंड प्रिवेंशन. नाउ वायरस डिटेक्शन कैसे होता है, वायरस डिटेक्ट कैसे होता है, ऑब्वियसली विद द एंटीवायरस प्रोग्राम्स. एंटीवायरस प्रोग्राम्स क्या करते हैं, वायरस के दे नो द वायरस पैटर्न्स, राइट. हम जैसे हमेशा अपडेट करते रहते हैं एंटीवायरस को, तो अपडेट करते हुए क्या होता है, न्यू वायरसेस, न्यू नोन वायरसेस का जो bit pattern है that is updated in the antivirus programs, and the antivirus programs then search that pattern in the files whichever are getting scanned. तो वहां पर अगर ऐसा कुछ पैटर्न मिलता है that means the virus is detected in that file. Okay. Normally virus detection program checks the integrity of binary files. It maintains a checksum, एक calculative checksum maintain होता है हर फाइल का, और रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे डिटेक्शन प्रोग्राम्स उस चेकसम को मैच करते हैं ओरिजिनल वन से. अगर वहां पे कुछ मिसमैच आता है दैट मीन्स दैट कोड में बी इन्फेक्टेड. नेक्स्ट इज द वायरस रिमूवल. रिमूवल मीन्स अ जनरलाइज वायरस रिमूवल मीन्स वायरस को निकालना. कैसे, ऑब्वियसली बिट पैटर्न मिला देन दैट इज रिमूव फ्रॉम दैट प्रोग्राम. A generalized virus removal program is very difficult to imagine due to the multiplicity of virus and the creativity with which they are constructed. So n number of viruses are constructed every day, right? So यहाँ पर एक full fledged program नहीं बोल सकते, imagine कर सकते जो हर virus को निकाल पाए. Slowly and gradually सारे viruses को वो affect कर चुके हैं या नहीं उनको निकाला जा सकता है, but एक full fledged program को imagine नहीं कर सकते. So however there are some viruses whose bit pattern in the code can be predicted. The virus removal program scans the disk for that patterns of known viruses and on detection it removes them. Okay, this is done by whom, the virus, this programs, antivirus programs. Okay.
Next is virus prevention. Prevent ही कैसे करें, आए ही नहीं. Okay, it is difficult or in some case not possible to recover the data. Hence, the best ways to prevent the viruses. For prevention of viruses, what should be done? Always buy legal copies of software. Do not download free or illegitimate copies. Again, take frequent backups of data and run monitor programs frequently to detect the programs. Okay, so हर frequent backups लेने चाहिए data के, so that हमारा data loss ना हो, and monitoring होते रहना चाहिए programs का, ताकि अगर कोई virus हमारे system में enter भी हुआ है तो that can be detected and removed. Now the last topic of this chapter is difference between computer virus and worms. 3 marks में ये question आता है, virus detection, removal, prevention for 3 marks and 3 marks for difference between computer virus and worm. Now virus क्या था, पता है आपको differences. It is not a complete program by itself, it is a complete program by itself, isn't it? And viruses, अगर ये complete program नहीं है तो it cannot operate independently, and this can operate independently, isn't it? Computer virus किस चीज को affect करता है? It affects the data, the code of the system. And computer worm, what it does, it consumes the system resources, it brings the network to halt, and this corrupts the code and data. So viruses cause direct harm to the system by corrupting codes as well as data, and worm generally consumes the system resources. Okay, so that's all for this chapter. In this chapter, we have learned many things. Now you all go through all the videos from the beginning. Whenever you're having time, go on revising the things, students. Now next chapter, we will be starting with C++ in the online sessions. Okay, so see you in the online sessions very soon. Bye bye, students. Take care.